चार्ट लेंगे आप? Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were doing chapter number 8, that is based upon the networks. Okay, in the last class I have discussed you the various kind of topologies and the various connection methods. Today I'll be discussing one left topology, that is ring topology, and then I'll be moving further to the terms related to the internet. Okay, ring topology. So what is basically ring topology? In ring topology, each device is connected to the two other devices, forming a ring. The advantage of this network is that communication flows in only one direction from one device to another. Because of this, data gets transferred quickly. The disadvantage of this network is that if even one device fails, the entire networks break down. So as far as ring topology is concerned, we know that each of the computers is connected to the two other computers. That means if this is system number 1 and this is system number 2 and this is system number 3. So they will be connected to each other in such a way that a ring will be formed. Second चीज क्या है? The flow of data is only in one डायरेक्शन. जो इसका फ्लो ऑफ डेटा होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है. Therefore इसका एडवांटेज क्या है? Its advantage is that the data gets transferred very quickly. तो एडवांटेज इसका है, advantage is that data gets transferred very quickly. Okay. So the advantage of the ring topology is that the data gets transferred very quickly. If it has advantage, then of course it's very obvious that it has some disadvantages as well. So what is the disadvantage? The disadvantage is that if any of the device or any of the system fails, then the entire network breaks down. ठीक है, एक सिस्टम में प्रॉब्लम अगर आती है तो पूरा सिस्टम जो है, जो नेटवर्क है, that gets break down. This is the disadvantage of your ring topology. Okay, now let's move further to the terms related to the internet. Now we will be reading some terms which are related to the internet. Terms related to the internet. पहला टर्म है इंट्रानेट. फर्स्ट टर्म इज इंट्रानेट. क्या इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है? इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ computers, or you could say that internet is the worldwide connection of networks. But intranet is your own personal network जो within आपकी लिमिट्स में ही रहेगा. Therefore इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We say that this is the intranet. Now moving further to next points. Next one is web page. Web page क्या होता है? So any page in the internet which contains text, pictures, audios, videos, okay, etc. that is known as your web page. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं. Now what is website? वेब पोर्टल या फिर वेबसाइट आर डिजाइन्ड and that provide the single point of access to the multiple service such as searching, online shopping, email and so on. These are the web portals जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी भी वेबसाइट को सर्व कर सकते हो. Now moving further to what is वेबसाइट. ठीक है, तो एक पढ़ा हमने कि वेब पेज क्या होता है, जिसमें टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो सब कुछ हो या फिर इनमें से कुछ चीजें हो, दैट इज नोन एज वेब पेज. और वेबसाइट क्या होती है? ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस हो. वेबसाइट बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. ठीक है,
सो वेब पेज क्या है? अ पेज विच हैज टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोज एक्सेट्रा, दैट इज नोन एज वेब पेज। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। अब बात आती है थर्ड कि वेब पोर्टल क्या है? व्हाट इज वेब पोर्टल? सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट the collection of various websites is known as web portal। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है। टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो सकती है? वेब पोर्टल इज दैट सर्विस which allow us to visit various websites by the multiple users at a single point। वेब पोर्टल वो होते हैं जो हम लोग को कई सारी वेबसाइट्स में ट्रेवल करा सकते हैं, चाहे जितने सारे यूजर्स क्यों ना उसको यूज कर रहे हो। दैट इज नोन एज web portal। okay, so you have came across the four major terms related to internet. First was intranet, second was your web page, then website, and the fourth one was your web portal। ठीक है, so let's move to the few other things: link, hyperlink and hypertext। लिंक, hyperlink and hypertext। So a link is a connection from one word, picture or the other object to the other। A link is selected by clicking on it। लिंक क्या होता है? सपोज एक पिक्चर आ रही बन के, उसमें आपने क्लिक किया एंड इट हैज टेकन यू टू सम अदर पिक्चर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंक। लिंक इज दैट कनेक्शन जो आप किसी पिक्चर पे क्लिक करेंगे या किसी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वो आपको दूसरी पिक्चर या फिर दूसरे टेक्स्ट तक पहुंचा दे, दैट इज नोन एज लिंक। ठीक है, सो वी कैन से दैट लिंक इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन वर्ड, पिक्चर और टेक्स्ट टू द अदर वर्ड, पिक्चर और टेक्स्ट इज नोन एज योर लिंक। ओके, मूविंग फर्दर, व्हाट इज हाइपरलिंक? ठीक है, हाइपरलिंक जो होता है दैट इज अ हाइलाइटेड ग्राफिकल इमेज। तो हाइपरलिंक है दैट इज अ हाइलाइटेड ग्राफिकल इमेज। जैसे आप उसके ऊपर जाते हो तो ये जो कर्सर इस तरीके का बन के आता है आपके कंप्यूटर्स में, वो इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ हैंड चेंज आता है ना, इट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ अ हैंड पॉइंटिंग वन फिंगर। तो आप समझ जाएंगे कि क्या चीज है। दिस इज नॉट अ सिंपल टेक्स्ट, दिस इज अ हाइपरलिंक एंड एज सून एज यू क्लिक ऑन दैट हाइपरलिंक यू मूव टू दैट वेबसाइट डायरेक्टली। ठीक है, तो आपका जो पॉइंटर है वो इस तरीके से चेंज आता है इस वाले पॉइंट में। ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि लिंक है, ये लिंक नहीं, ये एक हाइपरलिंक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपका वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका ये पार्ट है। ठीक है, now the text on which a hyperlink is created is known as hypertext। ऐसा टेक्स्ट जिसके थ्रू आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं दैट इज नोन एज द हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आप एक जगह से दूसरी जगह तक डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सर्फिंग अ वेबसाइट और वहां पे लिख क्या है, ये कुछ चीज लिख क्या है कि क्लिक फॉर रिजल्ट। ठीक है, इसे लिख क्या, आप जैसे क्लिक करोगे तो आप रिजल्ट में पहुंच जाओगे। तो इसको क्या बोलेंगे आप? दिस इज अ हाइपरटेक्स्ट, जिस पे आप क्लिक करते ही तुरंत उस इंफॉर्मेशन तक डायरेक्टली जंप करके पहुंच जाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लिंक, हाइपरलिंक एंड हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, मूविंग फर्दर, URL क्या होता है? व्हाट इज URL? URL इज stands for Uniform Resource Locator, which is actually the web address of that website। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। जिसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? www से इसका स्टार्ट होता है, देन डॉट, यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, फिर यहाँ पे डोमेन आता है @ करके, उसके बाद आगे अगर वो कमर्शियल वेबसाइट है तो .com, अगर वो एक इंडिया की नॉर्मल वेबसाइट दैट इज .in, गवर्नमेंट वेबसाइट है .gov.in। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स जिससे कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ URLs को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या होता है?
you might have heard that my connection is of 32 Mbps, my connection is of 21 Mbps, लोग इस तरह बोलते हैं ना, वही क्या होती है, वो होती है बैंड विड्थ। दैट इज द अमाउंट ऑफ डेटा जो कि 1 सेकेंड में ट्रेवल कर सकता है उस कनेक्शन के थ्रू, वही उस नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेइंग दैट my bandwidth is 21 Mbps, इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में उस नेटवर्क के थ्रू 21 MB डेटा ट्रांसफर हो सकता है। सो दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। आज के टाइम पे तो क्या आ गया है आपका GBPS भी आ गया है, इतना फास्ट इंटरनेट कनेक्शन हो चुका है कि 1 GB ऑफ डेटा कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, जिसको आप लोग रेफर करेंगे या मेजर करेंगे इन GBPS। ठीक है। Now ISP, what does the word ISP stand for? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दैट मींस जिस भी कंपनी से आप इंटरनेट एक्सेस या फिर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इफ यू आर सेइंग दैट आई एम अवेलिंग डेटा फ्रॉम रिलायंस, तो आपका ISP कौन है? रिलायंस इज योर ISP। If you are saying that I am availing data from BSNL, then you will be saying that my ISP या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? BSNL है। ठीक है। तो there are various service providers which are available around us nowadays। ठीक है। चलिए let's move further to IP address and DNS। So this is very important, you should be going through this very carefully। So IP address stands for Internet Protocol Access। First of all, I'll be reading the content given in your book। They are saying Ravi had 2 friends some years ago. It was easy for him to remember the phone numbers of both of his friends. Now his circle of friends has grown. He has nearly 40 friends. He wants to contact regularly. He can remember the names of his 40 friends but not their phone numbers। So actually the thing is trying to explain that कि जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है वैसे वैसे आपको यूनिक चीज चाहिए होती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर्स। ठीक है। सो वी नो दैट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द वेबसाइट वी हैव क्रिएटेड वेरियस IP एड्रेसेस, जिसके थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क पहचान लेता है कि किस नेटवर्क में आप एंटर करना चाहते हैं। तो दैट इज नॉर्मली रिफर्ड टू एज द IP एड्रेस। ठीक है। DNS क्या करता है? DNS का मेन रोल क्या है? जैसे आप कुछ भी टाइप करते हैं उसका मेन काम है कि उसको वो कन्वर्ट कर देता है इनटू IP एड्रेस, जिससे कि कंप्यूटर उसको आसानी से रिटेन कर पाए। ठीक है। So this is the basic difference between the IP address and the DNS। So this is the completion of your chapter number 8 networks। Thank you।